وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھی، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیدہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ لیکن آج ہی صبح تو آپ نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی تھی، وہ ڈھٹائی سے بولا، اور سمیع اللہ بھی اس بات کا گواہ ہے۔ زبردستی مدعو نہیں ہوا جاتا، سمجھے آپ؟ اور میرے لہجے میں سختی آ گئی۔ آپ جا سکتے ہیں اور آئندہ یہاں آنے کی زحمت نہ کریں، اور میں آپ سے ملنا پسند نہیں کرتی۔ اور یہ تو آپ سراسر وعدہ خلافی کر رہی ہیں۔ اگر میں کچھ دیر اور نہ آتا تو آپ نکل ہی گئی ہوتی، اور معلوم نہیں کیوں بار بار مجھے یہ اندیشہ ہو رہا تھا کہ اگر دیر سے آپ کے گھر پہنچا تو ملاقات نہیں ہو سکے گی، اور یہاں آ کر میرا اندیشہ درست ثابت ہوا، اور میں اسی لیے رات کو آنے کی بجائے اسی وقت چلا آیا۔ اور اس نے میری بات سنی انسنی کر دی، اور اب یہ سوٹ کیس اندر جا کر کمرے میں رکھ دیں۔ یہ بد اخلاقی ہے کہ کوئی آپ کے گھر آئے اور آپ اسے چھوڑ کر چل دیں۔ اور میں نے ہونٹ بھینچ کے اسے قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی، اور وہ میری بے بسی سے لطف لے رہا تھا۔ دلاری، جو اب تک خاموش رہی تھی، اس موقع پر بول اٹھی، سلیم، تمہارا یہ کہنا غلط ثابت ہو چکا ہے کہ مابلہ جی نے تمہیں مدعو کیا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور اگر مجھے اسی طرح واپس جانا ہوتا تو دلاری آتا ہی کیوں؟ اور تم اس معاملے میں نہ ہی بولو، یہ میرا اور مابلہ خاتون کا معاملہ ہے، اور انہیں تم سے میں زیادہ جانتا ہوں۔ ان کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان پر کچھ، اور میں گزشتہ رات کی بات بتا دوں تو تم حیران رہ جاؤ گی۔ اور پھر وہ میری طرف متوجہ ہو گیا اور کہنے لگا، اجازت ہے خاتون، دلاری کو حقیقت سے آگاہ کر دوں؟ اور وہ پوری طرح شیطانیت پر آمادہ نظر آیا، اور میں اسی سے بچنے کی خاطر گھر چھوڑ کر جا رہی تھی، اور وہی اس وقت خلاف توقع میری راہ کھوٹی کرنے آ گیا، اور یقیناً یہ بھی چمپا کی شرارت معلوم ہوتی تھی۔ نہ تو وہ رات ہی کو آتا، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کس طرح جان چھڑاؤں۔ اور پھر میں نے سوچا کہ جتنی دیر بھی یہاں موجود رہیں گی وہ اسی طرح بکواس کرتا رہے گا، اور اسی خیال کے تحت کچھ کہے بغیر میں آگے بڑھنے لگی، اور اسی لمحے سلیم نے میرا راستہ روک لیا۔ اب آپ کی حقیقت کھل رہی ہے تو راہ فرار اختیار کر رہی ہیں، اور میں اس طرح آپ کو نہیں جانے دوں گا، وہ بدلے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ نے ایک عورت ہو کر دوسری عورت کے حق پر کل رات ڈاکہ ڈالنا چاہا، اور آج رات کو بھی مجھے اسی لیے مدعو کیا، اور دلاری کو اس سے آگاہ ہونے دیں جو آپ کو پاک دامن سمجھ رہی ہیں۔ اور دلاری کا چہرہ متغیر نظر آنے لگا۔ اس نے شاید اپنے محبوب کے سفید جھوٹ کو سچ سمجھ لیا۔ بکواس بند کرو اپنی، اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ اور یہ جاننے کے باوجود کہ اس وقت چمپا کا آلے کار بنا ہوا ہے، میں اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکی۔ مابلہ کو جانے دو نسرین، دلاری نے مداخلت کی، جو بات بھی ہے تم مجھے بعد میں بتا دینا، اور مجھے یقین ہے کہ تم مجھ سے غلط بیانی نہیں کرو گے۔ نہیں، سلیم تیز آواز میں بولا، میں انہی کے سامنے اظہار حقیقت کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ بعد میں تمہارے سامنے خود کو معصوم اور بے گناہ ثابت نہ کر سکیں، اور میں اس وقت اسی لیے آیا تھا، اور اس سے پہلے کہ پانی سر سے اونچا ہو جاتا اور چمپا مجھے بے عزت و رسوا کرنے کی غرض سے کوئی حربہ آزماتی، اور میں نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ اور دلاری یہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں اور قطعی جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کہا، اور یہ سراسر مجھ پر بہتان لگا رہا ہے، اور تم اس کی باتوں پر یقین نہ کرنا۔ اور یہ سنتے ہی سلیم عجیب سے انداز میں زور سے ہنس پڑا، اور پھر اس کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ اس کے چہرے پر بھی میں نے تناؤ سا دیکھا، اور جب وہ بولا تو اس کی آواز بھی بدلی ہوئی تھی۔ مابلہ، تو کتنی بڑی پارسا ہے یہ ابھی معلوم ہو جائے گا۔ ادھر دیکھ میری آنکھوں میں، اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا، کیا تو کل رات بیدار تھی؟ اور جو سچ ہے وہ خود ہی تیری زبان پر آ جائے گا۔ دیکھ ادھر، اور اس کے لہجے میں حکم تھا۔ نہیں مابلہ، اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالنا، کسی نے جیسے میرے اندر سے مجھے تاکید کی۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اس شخص کے ذریعے چمپا تمہیں اپنے شہر میں گرفتار کر لے گی، اور پھر وہی ہوگا جو وہ چاہے گی، تم بے بس ہو جاؤ گی۔ اور اسی کے ساتھ مجھے رانی کا ساتھی جہانگیر یاد آ گیا، جس سے خود کو بچانے کی خاطر میں نے اسے قتل کر دیا تھا،
اور چمپا نے مجھے اسی کے ذریعے اپنے قابو میں کر لیا اور اس سے نفرت نظریں ملاتے ہی جیسے ہی میں اپنے حواس میں نہیں رہی تھی، اور ذرا دیر پہلے میں نے جو فیصلہ کیا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے آہستگی سے سوٹ کیس فرش پر ڈال دیا، اور اسی کے فوراً بعد میرا جچا طلحہ سلیم کی کمپٹی پر پڑا اور وہ چکرا کر گرنے والا تھا کہ میں نے لپک کر اس کے جسم کو سنبھال لیا، اور وہ گر کر زخمی بھی ہو سکتا تھا۔ یہ آپ نے کیا کیا معاملہ جی، کیا کیا آپ نے؟ اور دلاری جیسے تڑپ اٹھی، اور اس کا تڑپنا فطری تھا، اور سلیم بہرحال اس کا محبوب تھا، وہی جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ اور میں نے سلیم کے بے ہوش جسم کو فرش پر ڈال کر سیدھا کھڑے ہو کر کہا اور پھر اسے تسلی دی، گھبراؤ مت، اسے تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا، میں اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی ہوں، میں ابھی پانی لے کر آئی۔ اور دلاری جانے کے لیے مڑی، اور تم جو چاہو کرتی رہنا، میں جا رہی ہوں۔ اور یہ کہتے میں نے سوٹ کیس اٹھایا اور گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ گھر سے باہر آ کر مجھے سڑک تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی، اور وہاں سے میں نے جامع مسجد تک کے لیے ایک ٹیکسی کر لی، اور میں جلد از جلد اس علاقے سے نکل جانا چاہتی تھی، اور ٹیکسی کو میں جامع مسجد پر چھوڑنے کی بجائے طرح بیرم خان تک لے گئی، اور کیونکہ وہاں تک ٹیکسی آسانی سے جا سکتی تھی، وہاں سے شہزاد کا گھر بھی زیادہ دور نہیں تھا، اور کرایہ ادا کر کے میں نے سڑک عبور کی اور دائیں جانب واقع چتلی قبر کے علاقے میں داخل ہو گئی، اور چتلی صاحب کا مزار مبارک اس گلی کی بائیں جانب تھا، اور میں جس میں داخل ہوئی۔ اب سورج غروب ہو چکا تھا اور مغرب کا وقت قریب تھا، اور میں دائیں ہاتھ میں سوٹ کیس اٹھائے سکون و اطمینان سے آگے بڑھتی رہی، کیونکہ مجھے زیادہ جلدی نہیں تھی، اور جلد ہی میں شہزاد کے گھر تک پہنچ گئی اور دروازے پر دستک دی، اور کچھ دیر میں دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا شہزاد کا چھوٹا بھائی فرحاد تھا، اور جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی اور میں چونک اٹھی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اور گھر کے اندر بھی مجھے شور شرابے کی آوازیں سنائی دی۔ کیا بات ہے فرحاد؟ میں نے اندر قدم رکھے اس سے پوچھا، یہ شور کیسا ہے؟ آپ کو تو معلوم ہے کہ گھر کی اوپری منزل پر چچا امجد رہتے ہیں، اور فرحاد میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بتانے لگا۔ اوپری منزل پر کچھ گونڈے گھس آئے ہیں جو چچا امجد کو مار پیٹ رہے ہیں، اور بھائی جان یہ امجد کو بچانے اوپر گئے تھے تو گنڈوں نے انہیں بھی مار کے بھگا دیا، اور ان کے سر پر چوٹ لگی ہے، اور سنبل انہیں پٹی باندھ رہی ہے، اور امی نے مجھے قسم دے کر اوپر جانے سے روک دیا ہے۔ میں اس وقت تک صحن میں پہنچ چکی تھی، اور سامنے کچھ فاصلے پر دالان میں شہزاد، اس کی ماں اور سنبل تینوں نظر آ رہے تھے، اور سنبل پٹی باندھ کر گرا لگا رہی تھی۔ تم یہ سوٹ کیس پکڑو اور میرا پرس بھی تھامو، اور میں نے فرحاد کی طرف سوٹ کیس بڑھایا اور اپنا ہینڈ پرس بھی دے دیا اور بولی، میں آئی ابھی۔ ارے آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اور فرحاد نے مجھے زینے کی طرف لپکتے دیکھ کر کہا، میری فکر نہ کرو، اور میں مڑے بغیر زور سے بولی، اور پھر بھاگتی ہوئی زینے پر چڑھ گئی۔ سیڑھیاں عبور کر کے میں نے اوپری منزل کے دروازے پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالا تو دروازہ دوسری طرف سے بند تھا، اور ان لوگوں نے غالباً اس خیال سے کہ گھر کا مزید کوئی فرد مداخلت نہ کرے، شہزاد کو مار کے بھگانے کے بعد اس طرف کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ اور میں نظر اٹھا کر دیکھا تو دروازے کے اوپر دیوار زیادہ بلند نہیں تھی، اور ممکن ہے کسی اور کے لیے دروازے پر چڑھ کر اس دیوار تک پہنچنا اور پھر دیوار پھاند کر دوسری طرف کودنا خطرناک یا ناممکن ہوتا، مگر میرے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور میں تو پہاڑوں کی باسی تھی، اور میری ایک عمر بلندیاں سر کرتے گزری تھی، سو میں نے دروازے پر چڑھنے میں دیر نہیں لگائی، اور میں تیزی کے ساتھ اوپر چڑھ گئی۔ خاتون یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ گر جائیں گی، شہزاد کی تیز آواز مجھے سنائی دی، اور اس وقت تک میں دیوار تک پہنچ چکی تھی۔ دیوار پر اوپر چڑھنے کے بعد میں نے نیچے صحن میں شہزاد، فرحاد اور سنبل کو دیکھا، اور وہ سب منہ اٹھائے میری طرف ہی دیکھ رہے تھے، اور اوپری منزل پر موجود شہزاد کے چچا امجد کے کمرے سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے سامان کی توڑ پھوڑ کی جا رہی ہو۔ ہائے میں مرا! اور امجد کی تیز آواز آئی، اور یقیناً اسے اب تک زود و کوب کیا جا رہا تھا، اور مزید وقت ضائع کیے بغیر میں دیوار سے دوسری جانب کود گئی اور پھر امجد کے کمرے کی طرف دوڑی، اور جیسے ہی میں بھاگتے ہوئے کمرے کے دروازے کے اندر داخل ہوئی، ایک شخص چیخا، اور وہ شیامو استاد، اگر یہ آ ہی گئی ہے تو پھر آج میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اور میں ان تینوں ہی کو ایک نظر دیکھ کر پہچان گئی۔ دراز قد شخص کا نام شیامو تھا، اور جو شخص مجھے دھمکی دے چیخا تھا وہ
शियामू का शागिर्द जानकी था और तीसरे शख्स का नाम मुझे मालूम नहीं था। और चंद रोज कबल उसी जगह इन हिंदू गुंडों से मेरा टाकरा हो चुका था और वो तीनों ही मेरे हाथों पिटे और सबसे ज्यादा शियामू उस्ताद पिटा था और वह अपने पैरों पर चलकर नहीं जा सका था और शायद वो अमजद से उसी रोज का इंतकाम लेने आ जाया था। और मैंने कमरे में दाखिल होने के बाद देखा कि जानकी तो अमजद को जूदो क़िब था और शियामू अपने गुर्गे के साथ सामान की तोड़ फोड़ में मसरूफ था। शियामू के हाथ में हाकी थी और वह जारहाना अंदाज में हाकी उठाए हुए मेरी तरफ लपका। जानकी और उसके दूसरे गुर्गे ने अपनी अपनी जेबों में हाथ डालकर चाकू निकाल के खोल लिए। उसके बरअक्स मेरे दोनों हाथ खाली थे और अमजद अपनी जगह पड़ा वकरा रहा था और उसकी शायद खासी पिटाई हो चुकी थी। एक नहती औरत के मुकाबले में पर यूं 3 मर्दों का आ जाना बहादुरी नहीं बुज़दिली है। और शियामू उस्ताद, आज भी मैं तुझे पैरों पर चलकर यहाँ से नहीं जाने दूंगी। और ये कहते ही मैं अपनी जगह से उछल कर दाएं जनब हो गई, क्योंकि शियामू उस्ताद ने मुझ पर वार कर दिया था और मुझसे अगर अपनी जगह छोड़ने में एक लम्हे की ताखीर हो जाती तो बाकी की भरपूर ज़रब मेरे सर पर पड़ी होती। और उस जगह से मेरे हट जाने के सबब हाकी पूरी शिद्दत के साथ कमरे के फर्श पर पड़ी और ऐन उसी वक्त मैंने उछल के शियामू के पहलू पर जोरदार लात मारी और ज़रब इतनी कारी थी कि उसके मुंह से चीख निकल गई और मेरी दूसरी लात शियामू के दाईं कलाई पर पड़ी और मेरी तवक्का के मुताबिक हाकी उसके हाथ से छूटकर दूर फर्श पर पड़े हुए अमजद के पास जाकर गिरी। और शियामू के हाथ से हाकी छूटते ही उन दोनों गुर्गे झपट कर आगे आ गए और उन दोनों के हाथों में चाकू थे। उसके बावजूद अपने चेहरों से वो घबराए हुए लग रहे थे। ठहरो, मैंने उन दोनों को मुखातब किया। तुम्हारा उस्ताद यहाँ से अपने पैरों पर चलकर नहीं जाएगा और तुम दोनों ही को इसे यहाँ से उठाकर ले जाना है। इसलिए बेहतर यह है कि तुम मुझसे अपने हाथ पैर ना तड़ाओ और चाकू फेंक दो। इसी में तुम्हारी भलाई है और तुमने अगर चाकू फेंक दिए तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। और मेरी बात सुनकर वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे जैसे कोई फैसला करना चाहते हो। और मेरे कहने पर वो आगे बढ़ते बढ़ते रुक गए थे और ये इस बात का सबूत था कि वो मुझसे खौफजदा है। चीर दो इस हरामजादी को, शियामू उस्ताद पीछे से चीखा और वो अपने बाएं हाथ से दाई कलाई थामे हुए था और लगता था कि कलाई की हड्डी पर कुछ ज्यादा ही चोट आ गई थी। और वो दोनों वैश्यानों की तरह चीख पर मुझ पर झपट पड़े और मैंने जिस्त भरी और फिर किसी परिंदे की तरह उड़ती हुई उनके सरों के ऊपर से अकब में मौजूद शियामू उस्ताद के शाने पर खड़ी कोहनी की भरपूर दरब लगाई और वो चीखता हुआ जमीन पर बैठ गया। और मैं तेजी से पलटी और शियामू के दोनों गुर्गे अपने ही जोर में दीवार से टकराते टकराते बचे। और फिर इससे पहले कि वो पलटकर दोबारा मुझ पर हमला आवर होते, मैं एक तरफ लपकी और जिधर फर्श पर हाकी पड़ी हुई थी और मैंने तेजी से झुककर हाकी उठा ली। उसी वक्त मेरी निगाह करीबी फर्श पर पड़े हुए अमजद की तरफ उठी और उसकी आंखें हैरत से फैली हुई थी। उसे शायद किसी औरत से ये तवक्का नहीं रही होगी कि वह यूं मर्दाना वार लड़ सकती है, हालांकि उसके लिए कोई ऐसा मंजर देखने का यह दूसरा मौका था। और उस वक्त तक वो दोनों मुझ पर हमला करने के लिए पलट चुके थे और मेरे हाथियों में हाकी देखकर वो ठठक कर रुक गए। रुक क्यों गए हरामजादे के चेलेओ, मैं उन्हें ललकारा, और आगे बढ़ो ना कि तुमने एक बार मुझ पर हमला करके अपने लिए रहम का खाना बंद कर लिया है और अब तीनों ही को खुद में बारी बारी उठा के घर से बाहर फेंक कर आऊंगी। और ये कहते ही मैं आगे बढ़ी। गालबन उन दोनों ने ही अंदाजा लगा लिया था कि जब नहती होने के बावजूद वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो हाकी हाथ में आ जाने के बाद मुझ पर काबू पा लेना नामुमकिन है। और अचानक उन दोनों ने अपने चाकू फेंक दिए और फिर जानकी गड़गड़ाया, हमें माफ़ कर दे देवी जी, हमसे गलती हो गई। अबे हरामियों, एक ज़रा सी लौंडिया से डर गए और शियामू उस्ताद गुस्से की वजह से चीख उठा, माफ़ करना उस्ताद, हमें यहाँ से अपने हाथ पैर सलामत ले जाने हैं। और जानकी मुंह बनाकर बोला। और जवाब में शियामू उस्ताद उन दोनों को गालियां बकने लगा और फिर मैंने उसे एकदम उठकर खड़े होते हुए देखा और मुझे उसके हाथ में अब खुला हुआ चाकू नजर आया। यकीनन उसने उठने से पहले अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाल के चाकू निकाल लिया था और चाकू वो दस्ते की तरफ से नहीं बल्कि नोक की तरफ से पकड़े हुए था और चाकू की नोक उसने चुटकी में ले रखी थी। पहले मैंने सोचा था कि तुझे बेआबरू करने के बाद जख्मी हल्क में यहाँ तड़पता हुआ छोड़ जाऊंगा, लेकिन अब मैं तुझे कत्ल करने का फैसला कर चुका हूँ। और शियामू उस्ताद गुर्राया। मैं उसका इरादा भांप चुकी थी और इसलिए पूरी तरह चौकन्ना खड़ी थी और शियामू उस्ताद किसी भी लम्हे
चाकू फेंक कर मुझे निशाना बना सकता था और मेरी नजरें उसके दाएं हाथ पर जमी हुई थी। और फिर उधर उसका चाकू फेंकने के लिए हाथ बुलंद हुआ। उधर मैं इंतहाई तेजी के साथ जमीन पर बैठ गई और चाकू सरसराता हुआ मेरे सर से गुजरा और काफी फासले पर मौजूद दीवार से टकरा कर नीचे गिरा। और श्यामू ने पूरी कुव्वत से चाकू फेंका था और शायद उसका निशाना भी गलत नहीं था, और फिर भी वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। ये तो बहुत बुरा हुआ श्यामू उस्ताद। मैं उठकर खड़ी हो गई। हाकी अभी मेरे हाथ में थी और लहजा मजाक उड़ाने वाला था। तुम्हारे लिए तो ये डूब मरने का मकाम है श्यामू उस्ताद कि आज तुम्हें फिर लड़की के हाथों पिटना पड़ेगा, और ऐसा करो कि फिर एक बार कोशिश करके देख लो। मैं नहीं चाहती कि तुम हसरत दिल में ही रह जाए। और वो देखो, तुम्हारे और मेरे दरमियान फर्श पर 2 चाकू और पड़े हैं, और ये वो चाकू हैं जो तुम्हारे दोनों शागिर्दों ने फेंके हैं। इन्हें उठा लो और यकीन करो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। और मेरी बात सुनकर श्यामू उस्ताद मुझे नाकाबिल यकीन सी नज़रों से देखने लगा, और फिर अचानक वो आगे आया, मगर मैंने उसे चाकू उठाते नहीं देखा, और वो तेजी से आगे बढ़कर मेरे कदमों में झुक गया और मेरे दोनों पैर पकड़ लिए थे। मैं श्यामू उस्ताद की इस हरकत पर हैरान रह गई। आखिरकार उसने यूं कदमों में झुककर मेरी बर्तरी तस्लीम कर ली, और इस मौका पर मुझे राजा उस्ताद याद आ गया। उसने भी इसी तरह मेरे कदमों में चाकू डालकर लड़े बगैर ही अपनी शिकस्त मान ली थी। और मुझसे भूल हो गई देवी, मैं तुझे नहीं पहचान सका। और श्यामू उस्ताद के लहजे में आर्दी और मुझसे ज्यादा अक्लमंद तो वो दोनों रहे कि जिन्होंने तुझे पहचान लिया। और उठकर खड़े हो जा उस्ताद। मैंने हाकी फेंक कर उसे शानों से पकड़ कर उठाया, और यूं इंसान का दूसरे इंसान के सामने झुकना अच्छा नहीं लगता। और तुम दोनों भी देवी के चरण छुओ। श्यामू उस्ताद ने अपने दोनों गुर्गों को लताड़ा, और मैं इनकार करती ही रह गई, मगर वो दोनों नहीं माने। और उसके बाद मेरे कुछ कहे बगैर ही उन्होंने अमजद से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, और बेतौरे तावान श्यामू उस्ताद ने अमजद को 1000 रुपये देने का वादा किया, और मैं उसने आधी कीमत रकम उसी वक्त अदा कर दी। उसके अलावा वहाँ से जो 200 रुपये लो, और वो भी अमजद को वापस कर दिए। और कमरे में मरहम पट्टी का कुछ सामान टीन की एक संदूकची में श्यामू उस्ताद ने खुद अपने हाथ से अमजद की मरहम पट्टी की। अमजद, आज से तुम मेरे भाई हो। श्यामू उस्ताद के लहजे में खलूस था, और मैं एक बार फिर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और मैं इस चक्कर में ये भूल ही गई थी कि मुझे ऊपर आए हुए खासी देर हो चुकी है, और मैं चौंकी उस वक़्त जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। और मैं तेज़ी के साथ कमरे से निकली और आगे बढ़कर जीने के दरवाजे की कुंडी खोल दी। और फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने शहजाद खड़ा नजर आया, और जिसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी, और उसके चेहरे से फिक्रमंदी का इजहार हो रहा था। और मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने पूछा, क्या वो गुंडे भाग गए खातून? नहीं, अभी तो नहीं भागे। क्यों? क्या उनसे तुम्हें भी काम है? मुझे शरारत सूझी। क्या वो अभी मौजूद है और शायद आप मुझे बना रही हैं? तुम तो पहले ही अच्छे खासे बने बनाए हो, और तुम्हारे अंदर मजीद बनाए जाने की गुंजाइश नहीं। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो मेरे साथ आओ और उन गुंडों का दीदार कराए देती हो, और तुमने तो उन्हें हाथ पहचान लोगे। और ये कहते मैंने शहजाद का हाथ थाम लिया, और समझ में नहीं आ रहा खातून कि आप क्या कह रही हैं। और शहजाद मेरे साथ चलते हुए बोला। शहजाद को मैं अपने साथ अमजद के कमरे में ले आई तो वह श्यामू उस्ताद वगैरह को देख कर ठठक गया, और वो उस कमरे के बिखरे हुए सामान को समेट रहे थे, और अमजद अपने बिस्तर पर नींद दराज था। यही है ना वो गुंडे? मैंने शहजाद से सवाल किया। जी हाँ खातून, शहजाद ने हकला कर तस्दीक की। मैंने इनके डंक निकाल दिए हैं और अब ये बेसरर हो चुके हैं। यकीन न आए तो खुद इनसे पूछ कर देख लो। और मैं मुस्कुरा कर बोली। और फिर मैंने श्यामू उस्ताद को मुखातब किया। अब मैं चल रही हूँ, और अब तुम जानो और चचा अमजद जाने। ज़रा ठहरें देवी जी। श्यामू उस्ताद ने उठकर मेरे करीब आया और चरण तो छू लेने दे। और जाने से पहले फिर उसने शहजाद से भी मुआफ़ी मांग ली। और शहजाद हैरत से उन तीनों को बारी बारी मेरे कदमों में झुकता देखता रहा। और फिर मैं उसके साथ कमरे से निकल आई और बोली, अब वो कभी यहाँ आकर झगड़ा नहीं करेंगे। हैरत है खातून कि आपने उन सरकश गंडों को किस तरह सीधा किया, और आप कमाल कर देती हैं। शहजाद ने मेरे साथ चलते चलते कहा। अच्छा ये बताओ कि तुमने मेरा काम कर दिया? जी हाँ, उसने जवाब दिया कि मकान की सफाई भी हो गई है और एक कमरे का फर्नीचर भी लगा दिया है, और उस कमरे के अलावा 2 कमरे और हैं, और मैंने उनके लिए फर्नीचर नहीं लाया, ज़रूरत भी नहीं। और मैंने कहा और जीनें उतरने लगी। हाँ, फरहाद वगैरह को ये ना बताना कि गुंडे अभी ऊपर मौजूद हैं। और शहजाद के साथ मैं नीचे आ गई तो उसकी माँ ने बुलंद आवाज़ में मालूम किया, अरे क्या हुआ शहजाद बेटे?
वो मोए गुंडे भागे कि नहीं? अभी भाग गए अम्मा, शहजाद ने भी बुलंद आवाज में बताया और हाथ से भी भाग जाने का इशारा किया और उसकी माँ की ऊंचा सुनती थी। खुदा का शुक्र है कि कम बख्ती मारे दफा हुए, बुढ़िया ने कहा और फिर उसे मेरी फिक्र हुई। अरे रानी बिटिया को तो चोट फेंट तो नहीं आई? नहीं अम्मा, शहजाद ने जवाब दिया। वो तो बुढ़िया के चेहरे से इत्मीनान झांकने लगा। मालूम नहीं ये अमजद किस दिन यहाँ से जाएगा, और जब से आया है एक दिन को चैन नसीब नहीं हुआ। बुढ़िया अपने दीवार देवर को बुरा भला कहने लगी और इतने में ऊपर चली गई थी और इसलिए सुंबल से भी मुलाकात नहीं हो सकी थी, और मैं नीचे आई तो वो मुझसे आकर लिपट गई। आपने ये बहुत अच्छा किया बाजी के लौट आई यहाँ, और अब मैं आपको जल्दी नहीं जाने दूंगी। सुंबल कहने लगी। उसे ये गलत फहमी यकीनन मेरे साथ सूट केस देखकर हुई थी। और ये तुमसे किसने कह दिया पगली कि मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी? मैं हंस कर बोली, और ये सूट केस तो आज ही खरीदा है और रास्ते से कुछ कपड़े और दूसरा सामान भी बाजार से खरीदा है और सूट केस में रख लिया है। यहाँ भी रहूंगी अगर मगर अभी नहीं। और वैसे तो बाजी से बड़ी मोहब्बत जाहिर कर रही है, लेकिन चाय तक तो अभी नहीं पूछा। शहजाद उठा और हम बैठक में जा रहे हैं। मैं चाय बनाकर लाऊं उम्दा सी? अभी लाई। और हाँ बाजी, खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। शर्त यह है कि तुम्हें भी मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि मैं गर्म रोटी जा रही हूँ, आप खाएं, मैं हंसी। दरअसल बात यह है खातून कि हमारे यहाँ पहले मेहमानों और मर्दों को खाना खिलाया जाता है और उसके बाद औरतें खाती हैं, ताकि मेहमान और मर्द हजरात सालन सपूट जाए तो बेचारी औरतें चटनी रोटी खा के गुजारा करें। मैंने हंसकर कहा, और वैसे जहां तक मेरा मामला है तो मैं खुद को मेहमान नहीं, इसी एक घर की एक फर्द समझती हूँ, और इसीलिए मेरे साथ पहले और बाद का चक्कर नहीं चलेगा। और उसी वक्त मैंने साथ वाले कमरे से फरहाद को निकलते देखा तो उससे सूट केस और अपने हैंड पर्स के बारे में पूछा। वक्त वो सहन में था और जब मैंने सूट केस और हैंड पर्स उसके हवाले किया था। दोनों चीजें मैंने कमरे में रख दी हैं, कहीं तो ला दूं? फरहाद कहने लगा। आप यहीं रहेंगी ना? और मैंने उसकी गलतफहमी भी दूर कर दी और फिर उससे उसको उन दोनों चीज़ें लाने को कहकर शहजाद के साथ निशस्त गाह की तरफ बढ़ने लगी। और मैं वहां पहुंची तो फरहाद दोनों चीज़ें दे गया। कुछ देर बाद जब मैं चाय पी रही थी तो शहजाद मुझसे बोली, क्या ख्याल है चाय पीकर चलें कोचा चीलान की तरफ और एक नज़र मकान चलकर देख लिया जाए? जैसा आप कहें, शहजाद ने जवाब दिया। और चाहे चाय पीकर चले या फिर खाना खा के एक साथ ही चलिएगा। अभी तो खाने में देर है और जब तक खाना पकेगा हम वहां से होकर आ भी जाएंगे। और मैंने चाय का घोंट लिया। हाँ, तुमने मालिक मकान को यह भी बता दिया कि नहीं कि मैं मुस्तकलन सिर्फ उसी मकान में नहीं रहूंगी? ऐसा भी हो सकता है कि मैं हफ्ते में एक आध रात ही वहां गुजारूं। और मैंने ये तो बताया नहीं, लेकिन आप कहेंगी तो बता दूंगा। और वैसे ये बताने की जरूरत भी क्या है, आप वहां रहे ना रहे उन्हें किराया मिलता रहेगा। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि कहीं वह मेरी तरफ से तशवीश में मुब्तला ना हो जाए। बहरहाल तुम ज़रूरी नहीं समझते तो छोड़ो। हाँ, कभी बात निकली या उन्होंने मुझसे पूछा तो कह दूंगा कि दिल्ली में आपके कई अजीज हैं और आप उनके यहाँ भी रहती हैं। चाय पीकर मैं शहजाद के साथ मकान के लिए कूचा चीलान रवाना हो गई और उससे मेरा एक मकसद रास्ता ज़हन नशीन करना भी था और मकान की चाबी शहजाद के पास ही थी। चतली कब्र से कूचा चीलान ज़्यादा दूर नहीं था। हम टहलते हुए वहां पहुंच गए और मकान कदीम तर्ज़े तामीर का था। ताला खोकर मैंने अंदर कदम ही रखा था कि किसी ने कुंडी हिलाई। कौन है भाई? शहजाद ने सेन की बत्ती जलाते हुए बुलंद आवाज में पूछा। मैं हूँ शहजाद भाई, मजीद, बाहर से आवाज आई। इजाज़त हो तो अंदर आ जाऊं? आ जाओ, शहजाद ने जवाब दिया और फिर मुझे बताया कि मालिक मकान चचा हमीद का बेटा मजीद है। और ज़रा ही देर बाद एक वजी नौजवान अंदर दाखिल हुआ और उसने मुझे सलाम किया और फिर कहने लगा, आपको मकान पसंद आया मोहतरमा? और वह शहजाद के छोटे भाई फरहाद की उम्र का लगता था। अभी तो हम लोग आए हैं, देखूंगी अब, वैसे ठीक ही लगता है। और शहजाद भाई बता रहे थे कि आप अकेली यहाँ रहेंगी और मुझे इस पर बड़ी हैरत हुई। और मजीद ने वो मुझे कुछ बातूनी सा लग रहा था। क्यों, इसमें हैरत की क्या बात? इसलिए मोहतरमा कि मैंने आज तक किसी खातून को अकेले रहते नहीं देखा और आप मुझे बहुत हिम्मत वाली लगती हैं। और उसका अंदाज पचगाना सा था। और उसकी बात सुनकर मैं हंसी और फिर शहजाद से बोली, यही खड़े रहोगे कि कमरे भी दिखाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चले। और ये कहकर वो आगे बढ़ा और मैंने सिर्फ वही कमरा देखना ज़रूरी समझा जो शहजाद ने बतौर ख्वाबगाह मेरे लिए मुंतखब किया। और मैंने कमरे का जायजा लेते हुए कहा, ठीक है। और फिर मैं बाहर आ गई और मजीद भी हमारे ही साथ साथ था। बाहर आकर मैंने बाथरूम वगैरह भी जायजा लिया और फिर उस तरफ बढ़ गई जिधर ऊपरी मंदिर पर जाने के लिए जीना था।
खातून, मैंने उस तरफ से कुंडी लगा दी है और चचा हमीद से भी मैंने कह दिया है कि वो भी दूसरी तरफ से कुंडी लगा कर रखें। हाँ बिल्कुल, मैंने तायद की। और इस तरह ना कोई ऊपर से नीचे आ सकेगा और ना यहाँ से कोई ऊपर, और उधर से ताला ही डाल देते तो और भी अच्छा था। आप कहेंगी तो कल ताला भी खरीद कर डाल दूंगा। और मालूम नहीं मजीद को ये बात क्यों नागवार हुई और उसने अपनी नागवारी का इजहार भी कर दीजिए। माफ़ कीजिएगा मोहतरमा, आप शायद हम लोगों को कुछ गलत समझ रही हैं, और इस तरह के इंतजामात वहाँ किए जाते हैं जहाँ एक दूसरे पर एतमाद ना हो। हम शरीफ लोग हैं और आपके कीमती साजो सामान की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेंगे। और आपने आखिर हमें समझा क्या है कि आप हम लोगों को चोर उचक्का समझ रही हैं। और आखिरी अल्फाज अदा करते हुए उसके लहजे में भी तलखी आ गई और सख्ती भी। अरे अरे मजीद, ये तुम्हें क्या हो गया? ये तो ख्याल करो कि खातून हमारी मेहमान है। और शहजाद उसके शाने पर हाथ रखकर समझाने लगा, मेहमान होंगी आपकी, हमारे तो किराएदार है। और वो और भी ईंट गया। आप बता रहे थे कि अब्बा कोई बहुत मालदार खातून है। अगर ये मालदार होंगी तो आप अपने लिए या आपके लिए, इन्हें हमारी इज्जत नफ्सी पर हमला करने का कोई इख्तियार नहीं। और फिर उसने आगे बढ़कर जीने के दरवाजे की कुंडी खोल दी और गुस्से में बोला, ये कुंडी इन्हें खुली ही रखना पड़ेगी और कुंडी ना इधर से लगेगी ना दूसरी तरफ से। अगर इन्हें हम पर भरोसा नहीं और हमें कोई अचोर चक्का ही समझ रही है तो अपना रास्ता लें और कोई और मकान देख लें किराए पर। तुम हद से बढ़ रहे हो मजीद। शहजाद को भी गुस्सा आ गया। जुबान संभाल कर बात करो, बर्दाश्त की भी कोई आखिरी हद होती है। चचा हमीद है घर में और मैं अभी उनसे तुम्हारी बदतमीजी की शिकायत करता हूँ। तुम्हें छोटे बड़े का भी कोई लिहाज नहीं रहा। और शहजाद तो मजीद पर अजहार खफगी कर रहा था, लेकिन मैं कुछ और सोच रही थी और मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी कि वो नौजवान आपे से बाहर हो जाता। और ये मामला बिगाड़ने में एक और ही लानती हस्ती का हाथ मालूम हो रहा था और मैंने कुछ खतरे की बू सूंघ ली। शहजाद के नाराज होने पर खिलाफी तवक्का मजीद खामोश हो गया और फिर सिर्फ इतना कहकर चला गया कि वह अपने बाप को नीचे भेज रहा है। और कुछ देर बाद एक देर उम्र शख्स उतर कर नीचे आया और वो शख्स मुझे बड़ी सी एक गेंद मालूम हुआ और उसका कद बहुत मुख्तसर था। और अजीब बात यह थी कि वह हर तरफ से गोल ही गोल नजर आ रहा था। चेहरा गोल, आंखें उल्लुओं की तरह गोल गोल और तूंद आगे को निकली हुई और गोल। और शहजाद ने शख्स को सलाम किया और फिर उससे मेरा तारुफ कराया। चचा, ये रानी साहबा है। और फिर वो मेरी तरफ मुड़ा, और रानी साहबा, ये मेरे वालिद साहब के दोस्त चचा हमीद है। वो तो खैर है, मगर ये चोर उचक्के वाला क्या किस्सा है? और उस शख्स हमीद ने शहजाद से पूछा और फिर मेरी तरफ निगाह उठाई। उसके बाद वो गोया तफसील के साथ मेरा जायजा लेने लगा। और मजीद ने आपसे ये बात कही होगी, उसका तो दिमाग खराब हो गया है। और यह कहकर शहजाद बूढ़े को सारी बात बताने लगा। और जितनी देर शहजाद उस बूढ़े को असल वाक़या बताता रहा, बूढ़े की नज़रें मेरे जिस्म पर रेंगती रहीं और बूढ़े की नज़रों की आवारगी मुझे गिरा गुजर रही थी। मगर मैं करती भी क्या, मजबूरन बर्दाश्त करती रही। हालांकि जी ये चाह रहा था कि इसकी दोनों आंखें फोड़ दूं। और बूढ़े ने शहजाद के सर पर पट्टी बांधने होने की वजह भी पूछी और शहजाद असल बात गोल कर गया। ये तो ऐसी कोई बात नहीं, बूढ़े ने आखिर फैसला सुना दिया। तुम ठीक कहते हो शहजाद मियाँ, वाकई इस लड़के का दिमाग चल गया है। और फिर वह अपने बेटे की तरफ से माजरत करने लगा और वह मुझी से मुखातब था। आप कुछ ख्याल ना कीजिएगा, दरअसल जब से उसकी बीवी घर में आई है बेसरा हो गया है। आप चाहे कुंडी लगाएं चाहे ताला डाल के रखें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। और आप जैसी किरायादार तो हमारे लिए बात से इज्जत व अफजाई है। और आपको कोई भी ज़रूरत हो, मुझे आधी रात को आवाज़ दे लें, फौरन हाजिर हो जाऊंगा। और मुझसे बात करते हुए भी बूढ़ा मुसलसल नज़रबाजी में मसरूफ़ रहा और उससे शायद वहाँ शहजाद की मौजूदगी का भी ख्याल नहीं था। शुक्रिया मोहतरम, मैंने अखलाकन कह दिया। अरे मैं कहाँ मोहतरम हो गया अभी से। और बूढ़े ने हंस कर कहा, और मेरी उम्र कोई ज़्यादा नहीं, दरअसल 16 साल का था तो उसी वक़्त घर वालों ने पैरों में बेड़ी डाल दी और मेरी मुराद शादी से है। उसी साल ये साठज़ादे तौलद हो गए और मजीद 20 साल का है। तो यहाँ मेरी उम्र का हिसाब लगा लें, 20 और 17 37 हुए तो भला ये कोई मोहतरम कहलाने की उम्र है। और अभी तो ये समझे कि जवानी है। और बूढ़ा इस तरह अपनी उम्र का हिसाब बता रहा था जैसे जवानी का इश्तिहार दे रहा हो। बात बिगड़ते बिगड़ते फिर बन गई और मैंने उससे यही नतीजा अखज़ किया कि ये मेरा वहम होगा कि चंपा इस मामले में टांग उड़ा रही है। अगर ऐसा होता तो वह बूढ़ा भी वही बोली बोलता जो उसका बेटा बोल कर गया था। और मैंने उस पर इत्मीनान का सांस लिया। अच्छा अब चलो शहजाद,
अरे आप पहली मर्तबा तशरीफ लाई है, मैं आपके लिए चाय बनवा कर लाता हूँ। बूढ़ा कहने लगा, नहीं चचा रहने दे, अभी हम लोग चाय पीकर ही आए हैं, अब खाना भी खाना है चाकर। तो कब से आप इस गरीब खाने को रौनक बख्शेंगी? बूढ़े ने मुझे मुखातब किया। शहजाद ने बताया आपको, और मैं आज रात यहीं सोऊंगी। हाँ, मैं चचा को बता नहीं सका था, शहजाद ने मुझसे कहा और फिर बूढ़े से कहने लगा, और हाँ चचा, जरूरी नहीं कि रानी साहबा रोज यहाँ आकर रहें, उनके कई अजीज भी इसी शहर में हैं और ये वक्तन फ़ौक्तन वहाँ भी रहेंगी। और मैंने ये बात इसलिए बता दी चचा कि आप इनकी तरफ से फिक्रमंद ना रहें। ये बताकर तुमने अच्छा किया शहजाद मियाँ, ये ना आती तो इनकी तरफ से फिक्र होती। और माशाल्लाह जवान जहान है और हसीन भी, और तुम्हें तो खबर है कि ज़माना कितना ख़राब है। और परसों ही की बात है कि शेर मोहम्मद की बेटी अकेली गली से गुजर रही थी और शाम्बू कमबख्त उसके पीछे लग गया। और आजकल के लौंडा ही ज़रा ही क्या सूंघ लेते हैं कि किसी चूहे की तरह दुम के बिल खड़े होने लगते हैं। और वो तो भला हो काजी जी का, उन्होंने बीच बचाव करा दिया, वरना तो शाबू ने शेर मोहम्मद पर चाकू निकाल लिया था। और मोहल्ले में आम खुले आम जुए का अड्डा चलाता है और पुलिस कुछ नहीं कहती। माल खिलाता होगा पुलिस को, और फिर पुलिस उससे कुछ कहने लगी। शहजाद ने बुरा सा मुंह बनाया। और हाँ, वो तुम्हारे चचा अमजद का क्या हाल है, कुछ सुधरा के नहीं? और बूढ़े ने शहजाद से सवाल किया और जुए के जिक्र पर उसे अमजद याद आ गया था। चचा अमजद भला कहाँ सुधरने वाले हैं? हाँ मियाँ, एक दफा बिगड़ गया सो बिगड़ गया। और बूढ़ा तवील सांस लेकर बोला, उसकी वजह से तुम्हारा बाप बेचारा ख्वाम खा फिक्रमंद रहता है। और जब से अमजद आकर यहाँ मुस्तकिल तौर पर बसा है, अरशद अली को चैन नहीं मिला। और बूढ़ा बातें बनाए जा रहा था और बात वो शहजाद से कर रहा था, मगर नजरें मुझ पर जमी हुई थी और मैंने शहजाद को चलने के लिए ठोका दिया। शहजाद चलने के लिए गालमन कहने ही वाला था कि बूढ़े ने एक और किस्सा छेड़ दिया जो मुझे सख्त नागवार गुजरा। और बूढ़े ने कहा कि शहजाद मियाँ, तुमने खास बात महसूस की कि रानी साहबा की शक्ल और सूरत तुम्हारी मरहुमा चची जान से कितनी मिलती है? चचा मुझे तो ऐसा नहीं लगता। शहजाद ने इनकार में सर हिलाया। और जहाँ तक मुझे याद है चची सांवली थी, बस जरा रंग ही तो उजला है इनका, बाकी तो सब कुछ वही है। और बूढ़े ने फिर मेरे सरापे को अपनी नज़रों से तोला। चची का तो जिस्म भी भारी था और कद भी तकरीबन आपके बराबर होगा। और जब मजीद पिया नहीं हुआ था तो तुम्हारी चची भी इन्हीं की तरह दुबली पतली थी। हाँ, मरहुमा का कद उनसे थोड़ा सा कम जरूर होगा, बाकी तो कोई फर्क नहीं। मालूम नहीं क्यों आपको इनमें चची मरहुमा की ममासरत नजर आ रही है। और चची की तो आंखें भी छोटी छोटी थी और सर के बाल भी झड़ गए थे। ये तो बाद की बात है मियाँ, वरना तो जब तुम्हारी चची ब्याह कर आई थी उनके बाल भी रानी साहबा की तरह काली घटा के लगते थे, बस आंखें जरा इनके मुकाबले में कदरे छोटी थी। खैर तुम कुछ भी कहो, मुझे तो इनमें तुम्हारी चची की झलक नजर आती है। और बूढ़ा अपनी बात पर अड़ा रहा। शहजाद की बातों से उस बूढ़े की मरहुमा बीवी का जो नक्शा मेरे जहन में बना वो ये था कि पिस्ता कद, भारी जिस्म, सर आगे बाल झड़े हुए और आंखें छोटी, और मुड़ से उसका कुछ भी नहीं मिलता था। और उसका एतराफ़ खुद बूढ़े ने भी किया। और फिर भी वह अपनी हट दर्मी पर कायम था और मुझे अपनी बीवी से मुशाबा ज़ाहिर करके शायद वह अपने सिफली जज्बात की तस्कीन कर रहा था। और मैंने इसकी बकवास से पीछा छुड़ाने की खातर बराह रास्त उसे मुखातब किया, अच्छा आप इजाज़त दीजिए, चलो शहजाद जी तो यही चाहता कि आप घड़ी भर भी नज़रों से उज्जल ना हो, मगर फिर सही यार जिंदा सोहबत बाकी। और फिर बूढ़ा सीने से ऊपर चला गया तो मैंने शहजाद से कहा, कुंडी लगा दो। और शहजाद ने आगे बढ़कर कुंडी डाल दी और फिर मेरे साथ घर के सदर दरवाजे से निकलकर बाहर आ गया। और मैं वापस में शहजाद से बोली, ये तुम्हारा चचा हमीद बड़ा ही चीकू और घटिया किस्म का आदमी मालूम होता है, और ख्वाम खा बार बार मुझे अपनी मरहुमा बीवी से मिलाया जा रहा था। और तुमने इस खबीस की नजरें देखी, यूं लग रहा था जैसे मुझे नजरों ही नजरों में निकल जाएगा जलील बुढ़ा। और मैंने अपनी भड़ास निकाल ली। हाँ, बुरा तो मुझे भी लगा। शहजाद ने मेरे ख्याल की तायद की। और पहले तो कभी चचा हमीद को ऐसी कोई हरकत करते नहीं देखा, आज तो देख लिया। और ऊपर कुछ अंदर कुछ, मैं मुंह बनाकर बोली। और उसी वक्त मैंने सामने से एक लंबे तरम्बे आदमी को झूमते झामते हुए आते देखा। और वो गली में कुछ पतली थी और मैं इसलिए शहजाद की आड़ में हो गई ताकि वो आदमी आसानी से गुजर जाए। वो कुछ और करीब आया तो मैंने उसकी चढ़ी हुई आंखें देखी। उसके चौड़े चकले चेहरे पर घनी मूछें थी और उम्र 40 के करीब लगती थी। और उसने करीब से गुजरते मुझे घूर कर देखा। और वो जब जरा आगे बढ़ गया तो शहजाद ने मुझे बताया कि यही वो शाबू बदमाश है और चचा हमीद जिसका जिक्र कर रहे थे।
होगा लानत पड़ो, मैंने नागवारी से बोली, और सारा शहर ऐसे लुच्चे लफंगों से भरा पड़ा है, लेकिन ये लोग फिर भी तुम्हारे चचा हमीद जैसे लोगों से 1000 दर्जा बेहतर है। और ये जैसे भी हैं ज़ाहिर तो है, और इनका ज़ाहिर बातन एक है, और ये शराफत का दावा तो नहीं करते। ठीक कहती है आप। शहजाद ने मेरी बात से इत्तफाक किया, और शहजाद के साथ जब मैं उस घर में पहुंची तो ऊपरी मंदिर से उसके बाप अरशद अली के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई, और मालूम हुआ कि अरशद अली को उसकी बीवी ने आज पेश आने वाले वाक़े से आगाह कर दिया, और अरशद अली इसी बार अपने छोटे भाई अमजद को बुरा भला कह रहा था। अम्मी, आपने अब्बू को क्यों बता दिया सब कुछ? अच्छी खासी बात खत्म हो गई थी, शहजाद अपनी माँ से बोला। हाँ, खत्म हो गई थी बात। अरे जब तक ये अमजद इस घर में है ये हंगामे खत्म नहीं होंगे, और अगर तेरे अब्बा को ना बताती और उन्हें किसी और हंगामे का पता चल जाता, और फिर महल्ले वाले बहरे तो नहीं, कोई ना कोई उनसे कह ही देता, और फिर मेरे लत्ते लेते कि मैंने उन्हें क्यों ये बात नहीं बताई। और बुढ़िया ने हाथ निचाकर कहा। शहजाद ने खामोशी इख्तियार कर ली, और सुंबल खाना पका चुकी थी। शहजाद ने दलान के तख्त पर फरहाद से चटाई और दस्तरखान बिछवा दिया, और अब्बा नीचे आ जाए तो खाना निकाल लेना। शहजाद ने अपनी बहन सुंबल को मुखातब किया। खाना खाकर चाय पीने के बाद ज्यादा देर मैं वहां नहीं रुकी, और मेरा सूट केस निशस्त गाह में रखा था, और शहजाद ने उसे उठा लिया और फिर मेरे साथ हो लिया। अब एक बार फिर मैं कूचा चैलान की तरफ जा रही थी, और शहजाद ने अब मकान की चाबी मेरे हवाले कर दी थी। कूचा चीलान पहुंचकर मैंने कुछ सोचते हुए शहजाद को घर के दरवाजे से रुखसत करना चाहा, मगर वो अंदर दाखिल होकर बोला, अभी ज्यादा रात नहीं हुई, चला जाऊंगा। और फिर वो मेरे साथ साथ ही कमरे में चला आया। सदर दरवाजा उसने घर में घुसते ही बंद कर दिया था, और सूट केस उसी के हाथ में था, और जो उसने मसहरी के करीबी दीवार से लगाकर खड़ा कर दिया। और मसहरी के पास जो छोटी सी मेज पड़ी थी उस पर पानी से भरा हुआ जग और शीशे के 2 गिलास रखे थे। सूट केस खोल कर मैंने स्लीपिंग कोट निकाला और शहजाद से बोली, मैं अभी आती हूँ, और कपड़े बदल कर अब तो सोना ही है। और फिर कमरे से निकल कर मैंने बाथरूम पर रुख किया और लिबास तब्दील करके आ गई। जो कपड़े उतारे थे वो मैंने कपड़े वापस आकर खोंटी पर टांग दिए। और मैं आपसे वादा कर चुका हूँ खातून कि अपनी जुबान से अर्ज विसाल नहीं करूंगा। शहजाद मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, और मुझे उसकी सूरत देखकर हंसी आ गई। और फिर मैंने कहा, कभी कभी तुम मुझे छोटे बच्चे लगते हो, और मैं इसलिए तुम्हें दरवाजे ही से वापस कर रही थी कि कहीं तुम बच्चों की तरह न मचलने लगो, मगर तुम नहीं माने। और मेरा ख्याल है कि जितनी देर तुम तन्हाई में मेरे पास रहोगे तुम्हारे जहन पर भी गुबार छाया रहेगा, और बेहतर यह है कि तुम जाके आराम करो और मुझे भी आराम करने दो। और हस्बे मामूल उसका चेहरा बुढ़ सा गया, और फिर वो एकदम उठ खड़ा हुआ। तो फिर मैं चलता हूँ, सुबह आऊँगा, और मैंने रास्ता देख लिया है, खुद आ जाऊँगी सुबह, और तुम्हारा साथ ही नाश्ता करूँगी, और फिर पहाड़ जाऊंगी। और मैं भी खड़ी हो गई ताकि वो जाए तो अंदर से घर का दरवाजा बंद कर लूं। और मैं उसके साथ साथ चलते हुए बोली, कल जीने के दरवाजे के लिए एक ताला खरीद कर जरूर रख लेना। हाँ, याद आया खातून। वो जेब में हाथ डालने लगा। आपने जो रुपये मुझे दिए थे उनमें से रहने दो, अपने पास ही रखो, और आइंदा भी किसी चीज़ की जरूरत पड़ सकती है। और जिस तरह इस वक्त ताला खरीदना मुझे याद आ गया, और मैं उसकी बात पूरी होने से पहले बोल उठी। शहजाद चला गया तो मैं घर का सदर दरवाजा अंदर से बंद करके लौट आई, और अब मैं इस घर में अकेली थी, और ऊपरी मंजिल का दरवाजा भी बंद था। बज़ाहिर अब मुझे किसी तरफ से कोई खतरा नहीं था, और सेन का बल्ब मैंने इसी तरह जला छोड़ दिया और कमरे में आ गई, और मेरे सिवा घर के अंदर कोई और था ही नहीं, इसलिए कमरे का दरवाजा बंद करना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। हाँ, बिस्तर पर दराज होने से पहले कमरे की बत्ती ज़रूर बुझा दी, और कमरे में एक ही बल्ब था, और उसके लिए तारीकी फैल गई थी। अभी मेरी आंख भी नहीं लगी थी कि कमरे के बाहर किसी के भारी कदमों की चाप सुनकर मैं चौंक उठी, और दरवाज़ा अंदर से बंद है तो फिर घर में कौन आ सकता है, मैंने सोचा। और कदमों की चाप करीब आती गई, और फिर एक आशना आवाज़ आई, क्या सो गई रानी साहबा? और ये आवाज़ उसी मनहूस बूढ़े हमीद की थी जो मालिक मकान था। और मुझे सख्त हैरत हुई कि जीने का दरवाज़ा बंद होने के बावजूद वह किधर से आ गया, और हकीकत हाल मालूम करने के लिए मैं उसी सबब तेज़ी से उठी और कमरे में रोशनी कर दी। अच्छा, तो मेरा अंदाज़ा दुरुस्त ही निकला, तो आप जाग रही हैं। हाजिर खिदमत हो सकता हूँ खातून। बूढ़े की बात और करीब आई। आइए। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी, और बूढ़े ने कमरे में कदम रखा तो मैंने उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा, फरमाइए कैसे जहमत की आपने?
میں دراصل سونے جا رہا تھا کہ آپ کا خیال آ گیا اور میں نے سوچا کہیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو پوچھ لوں، اور میرے ذہن میں آیا کہ آپ سو نہ گئی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچھ اور آگے بڑھ آیا اور اگر اجازت ہو تو بیٹھ کر بات کر لوں۔ اس نے میرے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ جی تشریف رکھیے، اور میں اپنے سلیپنگ گاؤن کو درست کرتے ہوئے بولی۔ اس ندیدے اور خبیث بوڑھے کے سامنے مجھے صرف سلیپنگ گاؤن میں کوفت سی محسوس ہوئی، اور وہ آگے بڑھ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور دانت نکال کر کہنے لگا، خدا نظر بد سے بچائے، آپ اس لباس میں بالکل کوئی انگریز میم لگتی ہیں۔ آپ یہ بتا رہے تھے آپ کیسے زحمت کی؟ میں نے اسے ٹوکا۔ وہ تو میں عرض کر چکا ہوں خاتون۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ نیچے صحن میں روشنی دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ ابھی آپ جاگ رہی ہوں گی، اور سوچا کہ زینے کے دروازے پر دستک دے کر دیکھ لینا ہو۔ اگر آپ نے دروازہ کھول دیا تو ٹھیک، ورنہ لوٹ جاؤں گا۔ اور نیچے آ کر میں نے جیسے اپنی طرف کی کنڈی کھولی تو دروازہ کھلا پایا، اور پھر میں چونک کر بولی، اور آپ کو دروازہ کھلا ہوا ملا، اور مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ شہزاد نے میرے سامنے ہی دروازے کی کنڈی لگائی تھی۔ جی ہاں خاتون، لیکن آپ بیٹھ جائیے نا، اور میری وجہ سے ناحق آپ کو زحمت ہوئی۔ اور میں اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی اور پھر بولی، آپ کی بڑی عنایت کی میری ضروریات کا خیال آیا اور میرے لہجے میں چبھن تھی، مگر معاف کیجیے، کسی کو جگا کر یہ نہیں پوچھا جاتا کہ وہ جاگ رہا ہے۔ خیر آج تو آپ نے یہ زحمت اٹھا لی اور پوچھنے آ گئے، اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور آئندہ یہ زحمت نہ کیجیے گا۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ مجھے تنہا رہنا زیادہ پسند ہے، اور میں اپنی تنہائی میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتی۔ اور اس عمر میں اور تنہائی، آپ نے بڑی عجیب بات کہہ دی خاتون، اور یہ تو جوانی کی راتیں مرادوں کے دن ہے، اور کہیں چھوٹی سی عمر میں دل پر کوئی چوٹ تو نہیں کھا لی؟ جی نہیں، میں سختی سے بولی، تنہا رہنا میری عادت ہے، اور مزید کچھ فرمانا ہے آپ کو؟ ان الفاظ سے میرا مقصد یہ تھا کہ آپ اس میں زیادہ دیر بیٹھنے رہنا پسند نہیں کر رہی، اور کنڈی کا کھول جانا میرے نزدیک خطرے کی علامت تھا۔ ظاہر ہے کہ دروازے کی کنڈی خود بخود نہیں کھل سکتی۔ جی ہاں، عرض تو کرنا تھا، بس ذرا یہ سوچ رہا تھا کہ تحمید کیا ہو، اور یہ تو میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں کہ میری عمر زیادہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ اپنی بیوی مرحومہ کی وفات کے بعد سے میں بھی آپ ہی کی طرح تنہا ہوں، اور آپ ہی کو دیکھ کر مجھے یہ خیال آیا کہ میں بھی اکیلا ہوں اور آپ بھی تنہائی کا شکار ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم دونوں مل کر ایک دوسرے کا دکھ بانٹ دیں۔ اور ویسے بھی آپ میری مرحومہ بیوی کی ہم شکل ہے، اور عقد ثانی کرنا میرے نزدیک کوئی عیب کی بات نہیں۔ یعنی آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے اس خبیث بوڑھے کو گھور کر دیکھا۔ جی ہاں خاتون، آپ ٹھیک ہی سمجھی۔ شہزاد میاں سے باتوں باتوں میں مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ اپنے معاملات میں خود مختار ہیں اور آپ کا کوئی بزرگ نہیں، اور میں نے اسی لیے براہ راست خود آپ سے بات کا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھا، اور صورتحال میرے لیے بڑی مضحکہ خیز تھی اور تکلیف دہ بھی۔ میں نے خطرے کی بو بھی سونگھ لی تھی، اور اس لیے پرسکون اور محتاط لہجے میں اس خبیث بوڑھے سے کہا کہ ابھی میری شادی کا کوئی ارادہ نہیں، اور اگر ایسا کوئی ارادہ ہوتا بھی تو کسی کنوارے شخص سے شادی کرتی، آپ سے نہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھ سے شادی کر کے ازدواجی زندگی کی وہ ساری راحتیں مل جائیں گی جو اپنی عمر کے کسی ناپختہ ذہن لونڈے سے ہرگز نہیں مل سکیں، اور مجھے ازدواجی زندگی کا وسیع تجربہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ عورت کو کس طرح خوش رکھا جاتا ہے، اور مجھ سے شادی کرنے کے بعد آپ کو میرے الفاظ کی صداقت کا صحیح اندازہ ہوگا، اور میں اسی لیے آپ سے درخواست کروں گا کہ کسی کنوارے اور ازدواجی زندگی سے قطعی ناآشنا شخص پر مجھے ترجیح دیجیے، اور میں آپ کو ایسی راحتوں سے ہمکنار کروں گا کہ خاتون کہ جس کا تصور بھی آپ شاید نہ کر سکیں، اور بس یوں سمجھے کہ نیا 9 دن اور پرانا 100 دن والا معاملہ ہے۔ بس آپ وہاں ہاں کر دیجئے۔ اور اس نے مجھے متوقع نظروں سے دیکھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اسے کرسی سمیت اٹھاؤں اور کمرے سے باہر پھینک دوں، اور پھر بھی صورتحال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے میں نے صبر سے کام لیا۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، ذرا اپنا دستے مبارک ادھر لائیے۔ وہ کس لیے؟ اور میری تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ اب وہ اپنی جیب سے ہاتھ نکال چکا تھا، اور مجھے اس کے ہاتھ میں سونے کی ایک انگوٹھی نظر آئی، اور وہ میرے سوال کے جواب میں بولا، آپ سے رشتہ الفت استوار ہونے میں خوشی میں یہ انگوٹھی خود اپنے ہاتھ سے آپ کو پہنانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ایجاد و قبول بھی ابھی ہو جائے گا، اور میں جس مسلک کا ماننے والا ہوں اس میں گواہوں کی موجودگی ضروری نہیں۔ نکاح کے لیے مرد اور عورت کی باہمی رضامندی کافی ہے، اور نکاح میں خود پڑھا لوں گا، نکاح خواہ کی بھی ضرورت نہیں۔ اور برداشت کی حد اب گزر چکی تھی، اور میں اس لیے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور سخت لہجے میں اسے مخاطب کیا، تشریف لے جائیے یہاں سے آپ،
ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خدا نہ کرے آپ کیوں بری ہوتی، آپ تو بہت اچھی ہے، اچھی نہ ہوتی تو میں آپ کو شادی کا پیغام کیوں دیتا، اور برے ہوں آپ کے دشمن، وہ بس دستور بیٹھا رہا۔ آپ جائیں یہاں سے اور مجھے سونے دیں۔ ارے آپ سونے کی بات کر رہی ہیں، حیرت ہے، یہ تو آپ کے نصیب جاگنے کا وقت ہے، اور زندگی کے ایسے حسین اور سنہری موقع سے فائدہ اٹھائے خاتون، اور میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے حسین موقعوں پر۔ میں نے برہم ہو کر کہا، اور میرے صبر کا مزید امتحان لینے سے بہتر ہے کہ آپ چلے جائیں، اٹھیے۔ اور لڑکی، اس کا لہجہ بدل گیا، مجھے بالکل ایسے لگا تھا جیسے کوئی سانپ پھونکارا ہو، اور میری شرافت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، اور یہ میرا گھر ہے، اور میں تمہیں اسی وقت اپنے گھر سے نکال سکتا ہوں۔ مجھے سختی پر مجبور نہ کرو تو اچھا ہے، اور سیدھی طرح مجھ سے نکاح پڑھوا لو۔ آخرکار وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ لانتی چمپا نے مجھے اذیت میں مبتلا کرنے کے لیے اس خبیث بوڑھے کو اپنا آلے کار بنا لیا تھا، اور بوڑھے کے بدلے ہوئے لہجے سے ساری حقیقت کھل گئی، اور عام حالات میں یقیناً وہ بوڑھا مجھ سے اس لہجے میں بات نہ کرتا، اور اس وقت بوڑھے سے کچھ کہنا سننا لا حاصل ہی تھا، اور میرے ایک بات نہ سنتا، اور میں عجب گفتگو کی کیفیت کا شکار تھی۔ کروں تو کیا کروں؟ اور پھر مجھے وہی آزمودہ ترکیب سوجی جو عموماً ایسے موقعوں پر کامیاب ثابت ہو چکی تھی۔ بوڑھے کی کمپنی پر بھرپور ضرب گا کر اسے بے ہوش کرنے کی خاطر میں تیزی سے پلٹی، مگر میرا ہاتھ ہوا میں لہرا گیا، اور بوڑھا بڑی صورت کے ساتھ جھک کر میرا وار بچا گیا، اور اسی لمحے کمرے میں چمپا کا کہکہ گونجا، اور میں اچھل پڑی۔ اس بڈھے سے تو وہ دلاری کا عاشق سلیم اچھا تھا جسے تو چھوڑ کر چلی آئی مابلہ، اور چمپا کی آواز سنائی دی، مگر وہ مجھے نظر نہ آ سکی۔ مگر تیری قسمت میں یہ بڈھا ہی لکھا تھا، تو اسے بے ہوش کر کے بڑھ سکتی، اور میں بھی دیکھتی ہوں کہ تو کہاں تک اپنی تقدیر سے بھاگے گی۔ اور چمپا کی آواز معدوم ہوتے ہی میں نے بوڑھے کو کرسی سے اٹھتے دیکھا، اور اس کے تیور مجھے خطرناک معلوم ہو رہے تھے۔ لمحہ بھر میں نے ایک فیصلہ کیا اور دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی، اور میں ایک ہی جست میں دروازے پر پہنچ گئی، اور پھر تیزی سے پلٹ کر کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ بڈھا اندر بند ہو گیا، اور ذرا ہی دیر بعد دروازہ پیٹنے لگا، اور دروازہ پیٹتے ہوئے وہ چیخ بھی رہا تھا، اور میری نگاہ دروازے کی کنڈی پر تھی، اور میں نے اس بات کو نظر انداز نہیں کیا تھا کہ لانتی چمپا بھی وہاں موجود ہے، اور وہ بھی اسی لمحے دروازے کی کنڈی کھول سکتی ہے۔ اور پھر میرا اندیشہ درست ہی نکلا۔ کمرے کی کنڈی میں نے خود بخود کھلتے دیکھی، اور میں نے جھپٹ کر دوبارہ کنڈی لگانا چاہی، مگر اس وقت تک دروازہ کھل چکا تھا، اور بوڑھا کسی جنگلی بھینسے کی طرح میری طرف لپکا، اور میں نے اس کی ٹانگوں میں ٹانگ پھنسا دی، اور وہ منہ کے بل زمین پر گرا، اور اس کو سر کو میں نے برآمدے کی فرش سے ٹکراتے دیکھا، اور وہ چیخ اٹھا، لیکن فوراً ہی حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، جس سے چہرہ بڑا بھیانک معلوم ہونے لگا، اور وہ پھر مجھ پر جھپٹا۔ میں نے اچھل کر اس کی توند پر لات ماری، اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ پکڑ لیا اور چیخنے لگا، اور میں نے دانستہ شدید ضرب لگائی تھی۔ اچانک میرے جسم کو دھکا لگا، اور میں اس بوڑھے پر جا پڑی، اور مجھے یوں لگا تھا جیسے کسی نے پیچھے سے دھکا دیا ہو، اور وہ بوڑھا اور میں دونوں ہی زمین پر گر گئے۔ اور پھر اس سے پہلے کہ میں اٹھتی، بوڑھے نے مجھے اپنی آہنی گرفت میں لے لیا، اور میں اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے زور لگانے لگی، اور میں نے اپنی دونوں کوہنیاں بوڑھے کے سینے میں گاڑ دی، اور بوڑھے کے جسم میں بلا کی شیطانی طاقت معلوم ہو رہی تھی، حالانکہ وہ زخمی ہو چکا تھا، اور اس کا سر پھٹ گیا تھا، اور اب تک خون بھی بہے جا رہا تھا۔ اور اچانک میں نے اس کے سینے سے کوہنیاں ہٹا لیں، اور پھر اپنا سر پوری قوت کے ساتھ اس کی ناک پر مارا، اور وہ ایک بار پھر زور سے چیخ اٹھا، اور اب اس کی ناک سے بھی خون بہنے لگا، اور ناک پر ضرب پڑتے ہی اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، اور میں نے اسی سے فائدہ اٹھایا اور تڑپ کر بوڑھے کی گرفت سے نکل گئی۔ میں اچھل کر کھڑی ہو گئی، اور شدید زخمی ہونے کے باوجود خبیث بوڑھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور وہ ایک وحشیانہ چیخ مار کر میری طرف جھپٹا۔ اس کا چہرہ لہو لہان تھا، اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگی، اور وہ مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے دوڑنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور مجھے بوڑھے کے نوجوان بیٹے مجید کی آواز سنائی دی، اور وہ شاید اپنے باپ کی چیخ سن کر نیچے اتر آیا تھا۔ میں نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی، اور وہ زینے سے نیچے اتر کر صحن میں پہنچ چکا تھا، اور وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنے باپ کو میرے پیچھے بھاگتے دے رہا تھا، اور دروازہ دھڑدھڑانے کی آواز آئی، اور گھر کے صدر دروازے کو بری طرح پیٹا جا رہا تھا، اور پھر یوں لگا جیسے کسی نے دروازے کی کنڈی کھول دی ہو، اور 10-12 افراد بڑا مار کر اندر کمرے میں گھس آئے، اور بوڑھا ہر طرف سے بے نیاد اب تک مجھے پکڑنے کی دھن میں
मेरे पीछे दौड़ा जा रहा था और मैं दाखिल होने वालों के आगे आगे लहीम शहीम शाबू था और उससे एक नज़र देखते ही मैं पहचान गई और यूं भी उसका चेहरा भूलने वाला नहीं था और वह तेजी से आगे बढ़ा। अबे ओ बुड्ढे, शाबू ने भारी आवाज में हमीद को पुकारा, अब घर में तू ये खरमस्तियां कर रहा है? और फिर शाबू ने झपट कर बूढ़े को पकड़ लिया। बूढ़े ने उसके पेट में इतनी जोर से कोहनी मारी कि बिल बुलाकर अलग हट गया और मैं इस मौके से फायदा उठाकर बाथरूम की तरफ भागी और जिसका दरवाजा खुला हुआ था और जैसे ही मैं करीब पहुंची बाथरूम का दरवाजा पुरशोर आवाज के साथ बंद हो गया। गोया अभी चंपा वहां मौजूद थी और वह यकीनन ये चाहती थी कि मैं अभी लोगों के सामने ही रहूं और मैं पलटी तो शाबू को फिर बूढ़े से जबरदस्त आजमा पाया और बूढ़े ने शाबू को उठाकर जमीन पर दे मारा। शाबू के मुंह से चीख निकल गई और फिर मालूम नहीं कि मौजूद देगर अफराद को क्या सूझी कि वो सभी बूढ़े पर पल पड़े और शायद उसका सबब यह था कि वो सभी बूढ़े को मेरे पीछे दौड़ते हुए देख चुके थे। ये मंजर देखकर गालबन उनकी गैरत जाग उठी और उनकी आंखों के सामने बूढ़ा मुझ पर मुजरमाना हमला कर रहा था और वो भला किस तरह ये बर्दाश्त कर लेते। और कुछ देर तो बूढ़ा हाथ पांव चलाता रहा और उसके बाद लहरा कर जमीन पर ऐसा गिरा कि फिर उठ ना सका और मजबूरन दूर होकर खड़ा उधर लपका। ये लड़की कौन है? और एक शख्स ने मेरे मुतल्लक मजीद से सवाल किया। लड़की आई कहाँ से यहाँ? और निचली मंजिल तो खाली पड़ी थी। दूसरा शख्स भी बोला, आज ही हमने इसे मकान किराए पर दिया। मजीद मुझे घूरते हुए जवाब दिया, और पहले मुझे बहकाना चाहा था ये आवारा है और उसने अब्बा से पैसे ले लिए होंगे और फिर नखरा कर रही होगी। गुस्सा आ गया होगा जब ही तो वो उसे पकड़ने भाग रहे थे। और मजीद ने एक और ही कहानी सुना दी। इसी दौरान में शाबू उठकर खड़ा हो चुका और इससे पहले कि मैं मजीद के सफ़ेद झूठ को करती बेनकाब करती शाबू बोल उठा, और फिर तो ये अपना माल हुआ। और फिर वो मेरी तरफ बढ़ा और कलाई पकड़ ली। अबे तू कहाँ शरीफों के घर में घुस आई? तेरा ठिकाना तो अपने अड्डे पर है, चल मेरे साथ। ये कहकर उसने मुझे अपनी तरफ घसीटा। हाँ शाबू भाई, तुम्हें ले जाओ इसे अपने साथ, मजीद ने कहा और दूसरे लोग भी उसकी हमायत करने लगे। शाबू ये सुनकर और शेर हो गया और मैं उससे अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसने मुझे आवाज़ दी कि चुपचाप चली चल और मेरे साथ, वरना उठाकर ले जाऊंगा। अरे शाबू, इसे कपड़े तो बदल लेने दो, कोई बोला। तुम लोग सही कह रहे हो, यही सही। और शाबू हंसकर कहने लगा और फिर मुझे मुखातब किया, चल बे, जाकर कपड़े बदल ले और अपना सामान भी समेट ले यहाँ से। अब तो मेरे अड्डे पर रहेगी, लेकिन ये ना समझ अच्छी तरह कि तुझे इस मोहल्ले में धंधा नहीं करने दूंगा और तुझे मेरी पाबंद बनकर रहना पड़ेगा। और उसने मेरी कलाई छोड़ दी। जा जल्दी से अपने कपड़े बदल। और मैंने कमरे की तरफ निगाह उठाई तो दरवाज़ा खुला हुआ था और मैं उधर बढ़ गई और मुझ पर इस वक्त आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली मसल सादक आ रही थी और खबीस बूढ़े से जान छूटी तो अब शाबू गले पड़ गया और मुझे अच्छी तरह लोगों की नज़रों में ज़लील और रुसवा करने के बाद लानती चंपा शायद अब वहां से जा चुकी थी और उसका सबूत कमरे का खुला हुआ दरवाज़ा था जो पहले बंद था। और शाबू का मामला खुद उसकी ज़ात तक महदूद लगता था। उसमें चंपा का हाथ मालूम नहीं होता था और शाबू से बचने की एक तदबीर तो ये थी कि मैं उस कमरे का अंदर से बंद करके बैठ जाती और वो भला कब तक इंतज़ार करता। दरवाज़ा खासा मजबूत था और उसे तोड़ना भी ना हो, और फिर मजीद भी गालबन ऐसा ना करने देता। और दूसरी सूरत यह थी कि मैं शाबू के साथ चली जाती और रास्ते में उससे पीछा छुड़ाकर फरार हो जाती। फरार होकर मैं कहाँ जाती और इसका फैसला बाद में किया जा सकता है। और इन्हीं बातों पर गौर करते हुए मैंने कमरे में आकर खोंटी पर टंगे हुए कपड़े उतारकर पहन लिए और स्लीपिंग गाउन मैंने सूट केस के अंदर रख दिया। हालिया वाक़े के बाद अब मेरे लिए उस घर में रहना मुमकिन नहीं था और अगर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती किसी भी तरह और वो रात वहाँ गुजार भी लेती तो सुबह फिर यही मसला होता और शाबू मुझे घर से बाआसानी निकल कर ना जाने देता। अब तो उसे मोहल्ले वालों की ताईद व हमायत भी हासिल हो गई थी और फिर वो किस तरह मुझसे हार जाता। और इन हालात में मुझे यही बेहतर मालूम हुआ कि इसी वक्त शाबू से निमट लिया जाए और यही फैसला करके मैं सूट केस उठाए हुए बाहर आ गई। अपना हैंड पर्स भी मैंने सूट केस में ही रख लिया और मैंने देखा कि कुछ लोगों की मदद से मजीद अपने बाप को उठवाकर ऊपरी मंजिल पर ले जा रहा था और बूढ़ा अभी तक बेहोश था। वो शायद शाबू मेरा ही मुंतज़िर था और मुझे देखते ही बोला, अबे कपड़े बदल कर तो बड़ी शरीफ लग रही है। और ये कहकर वो धीरे से हंसा और मैं उसके करीब पहुंच गई। तूने अपना हाथ आगे बढ़ाया, ला ये सूटकेस मुझे दे दे। और मर्द के होते हुए औरत बोझ उठाते अच्छी नहीं लगती। और मैंने कुछ सोचते हुए सूटकेस उसे थमा दिया और इस तरह मुझे शाबू से निमटने में आसानी होती।
और कुछ ही देर बाद शाबू के साथ उसमें घर से निकल आई और उस गली से निकल कर वो मुझे साथ लिए एक गली में दाखिल हुआ और हम दोनों के सिवा उस वक्त गली में कोई और नहीं था। और फिर शाबू को मैंने मुखातब किया, देख अगर तू मेरे साथ शराफत से रही और वफादार साबित हुई तो ऐश करा दूंगा तुझे। समझ गई मेरी कबूतरी। और शाबू के अल्फाज अभी ख़त्म ही हुए थे कि फैसले की घड़ी आ गई और मेरे मौके की भरपूर ज़रब उसकी कंपनी पर पड़ने के बाद यकीनन उसके कई तबक एक साथ रोशन हो गए और उसके हाथ से सूट केस छूट गया और वह लहरा कर ज़मीन पर गिर गया। और मैंने लपक कर अपना सूट केस उठाया और फिर तेज़ी के साथ उस गली से निकल आई। वहाँ से शहजाद का घर ज़्यादा दूर नहीं था और मैं उसके घर में भी रात गुजार सकती थी, लेकिन लानती चंपा का कोई भरोसा नहीं था और वहाँ वो मेरे लिए कोई नया हंगामा खड़ा कर सकती थी। जामे मस्जिद के करीब मैंने उस दर्जे के कई होटल देखे थे और मैंने शहजाद के घर जाने के बजाय उन्हीं होटलों में किसी होटल में रात गुजारने का फैसला कर लिया। और उस वक्त रात के तकरीबन 11 बज रहे थे जब मैं एक होटल में दाखिल हुई और काउंटर पर मौजूद बारिश बूढ़ा बैठा हुआ था और मुझे आज रात भर के लिए कमरा चाहिए। मैंने बूढ़े को मुखातब किया, आपका नाम? बूढ़े ने एक रजिस्टर खोलते हुए पूछा। जुबैदा। कहाँ से आई है? कलकत्ते से, और वहाँ का पता लिखवाइए। और मैंने कलकत्ता में अपनी कोठी का पता लिखवा दिया और एक ही रात रहेंगी। ऐसा करें कि हफ्ते भर के लिए कमरा बुक कर लें और अगर मैं इस दौरान में कमरा छोड़कर चली जाऊं तो हिसाब हो जाएगा। और मेरा इरादा बदल गया और वो होटल मुझे पुरसकून ही लगा। तो फिर एक हफ्ते का पेशगी किराया जमा करा दें। बूढ़े ने रकम बताई और मैंने काउंटर पर सूटकेस रखकर उसमें से अपना हैंड पर्स निकाला और मतलूबा रकम अदा कर दी। बूढ़े ने एक बेड़े को आवाज़ देकर बुलाया और कमरे की चाबी मेरे हवाले कर दी और मेरा साथ हो लिया। उसने सूटकेस उठा लिया था और अंदर एक तंग सी राहदारी के दोनों जानब कमरा दरवाजे नजर आ रहे थे और मेरा नंबर 8 था और गत्ते का एक टुकड़ा चाबी के साथ धागे से बंधा हुआ था जिस पर हाथ से 8 का हिंसा लिखा था। बहरहाल बहरा चला गया तो मैं दरवाज़ा बंद करने के बाद बत्ती बुझा के बिस्तर पर लेट गई और शहजाद के जरिए मैंने जो मकान किराए पर हासिल किया था वहाँ तो मुझे सुकून नहीं मिल सका, लेकिन होटल का ये कमरा उसका नामुल बदल बन गया था। और उस रात शायद चंपा अपनी दानिश में मुझे खासा परेशान और ज़िलो रुसवा कर चुकी थी, इसलिए रात का बकिया हिस्सा सुकून से ही गुजर गया और सोने के बाद सुबह 9 बजे ही मेरी आँख खुली। कुछ देर बाद जब मैं बाथरूम से निकलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी तो एक कमरे का दरवाज़ा खुला और उस कमरे से बाहर आने वाली औरत के चेहरे पर जैसे ही मेरी नज़र पड़ी और मैं ठटक कर रुक गई। यही हालत उस औरत की हुई थी और मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो जुराइम पेशा औरत किसी ऐसे होटल में भी ठहर सकती है। और वो इस वक्त मेरी दी हुई साड़ी बांधे हुए थी, लेकिन चेहरे पर मास्क नहीं था और मेरे और उसके दरमियान सिर्फ चंद फुट का फासला था। और वो मुझे देखकर मुस्कुराई और आगे बढ़ते हुए बोली, अरे तुम रुक क्यों गई? आओ ना मामला और मेरे कमरे में चलो, वहाँ चलकर बात करते हैं। मेरा नाम मामला नहीं जुबैदा है और मैं तुम्हें नहीं जानती, मैंने सपाट आवाज़ में कहा। ऐसी बेरुखी? वो आहिस्ता से हंसी। नामों में क्या रखा है? मैं भी यहाँ बम्बई की रानी नहीं मुरादाबाद की अंधू हूँ और क्या नाराज़ हो मुझसे? और वो जुराइम पेशा औरत बहरहाल मेरी दोस्त नहीं दुश्मन थी और पुलिस को मेरे पीछे लगाकर दुश्मनी का सबूत भी दे चुकी थी और मैंने इसीलिए उसकी पेशकश कबूल नहीं की। उस औरत की वजह से अब वो होटल भी मेरे लिए महफूज नहीं रहा था और मैं सोच रही थी कि अपना सामान लेकर फौरन वहाँ से निकल जाऊँ। ये मत भूलो मामला कि पुलिस अब भी तुम्हारी तलाश में है, रानी ने मुझे धमकी दी, और मैं तुम्हारी तरफ एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती हूँ और तुम दामन बचा रही हो। और मुझे अपने उस साथी से यह मालूम हो चुका था जो तुम्हारी निगरानी कर रहा था कि तुम्हें पुलिस की गिरफ्त से निकालने वाले 2 मसला नकाबपोश थे और यकीनन वो तुम्हारे ही साथी होंगे और तुम भी मेरी तरह ग्रोह बंद हो और अभी तक हीरे मेरे हत्थे नहीं चढ़ सके। विक्टर अलग मेरे पीछे लगा हुआ है और मैं तुमसे सिर्फ इतना तावन चाहती हूँ कि अपने कुछ आदमी वक्ती तौर पर मुझे दे दो और मैं तुम्हें उसके लिए माकूल मुआवजा देने को तैयार हूँ। और उसी वक्त एक आदमी बाथरूम की तरफ से आता दिखाई दिया तो रानी चुप हो गई। चलो, मैं कुछ सोचते हुए रानी के साथ उसके कमरे में चलने पर आमादा हो गई। उसकी वजह यह थी कि वहाँ राहदारी में उससे उलझ पड़ना खुद मेरे हक में भी मुनासिब नहीं था और मैं किसी न किसी तरह से जान छुड़ाकर उस होटल को छोड़ देना चाहती थी। उस कमरे की हालत भी तकरीबन वैसी ही थी जैसे मेरा कमरा था और रानी ने मेरे अंदर दाखिल होते ही कुंडी बंद कर दी और मैं मुंडे पर और चारपाई पर बैठ गई। बात दरअसल ये है मामला कि मैं अपने साथ बम्बई से 4 साथियों को दिल्ली लेकर आई थी। उनमें से डेविड तो विक्टर के हाथों मारा गया और जहांगीर को मालूम नहीं
کہ کیوں تم نے زہر دے کر قتل کر دیا۔ خیر یہ تلخ ذکر چھوڑو، مجھے کم از کم 2 ہفتے کے لیے 5 تجربہ کار مسئلہ آدمیوں کی ضرورت ہے، اور تجربہ کار کا مطلب سمجھانے کی غالباً ضرورت نہیں۔ بولو تم اس کے لیے کتنا معاوضہ لوگی؟ معاوضہ اگر میرے لیے قابل قبول ہوا تو طے شدہ نصف رقم میں اسی وقت ادا کر دوں گی۔ اور یہ کہہ کر مجھے جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ رانی تم شاید میری طرف سے شدید غلط فہمی کا شکار ہو، میرا کوئی گروہ نہیں، میں نے اسے سمجھانا چاہا۔ اور پھر وہ مسئلہ نکاح پوش کون تھے، اور اس کے علاوہ تم نے پولیس حراست سے اپنے آدمی کو کیسے نکالا؟ اور اگر میں تمہارے ان سوالوں کا جواب نہ دوں تو میں نے اسے گور کر دیکھا تو میں یہ سمجھوں گی کہ تم مجھ سے دوستی کرنے کے بجائے دشمنی برقرار رکھنا چاہتی ہو، اور تمہیں میری دشمنی بہت مہنگی پڑے گی معاملہ، اور ہم دونوں ہم پیشہ ہیں، اور ہم پیشہ افراد کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے۔ میرے ذہن میں ایک تدبیر آئی اور اسی کے پیش نظر میں بولی، رانی کیا تم مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دے سکتی ہو؟ اور میری بات سن کر وہ مسکرائی اور پھر کہنے لگی، معاف کرنا معاملہ، تمہارے چہرے اور لہجے سے ظاہر نہیں ہو رہا کہ تم واقعی سوچنے کے لیے وقت چاہتی ہو، اور تم اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر یہاں سے فرار ہو جانے کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ اور اگر میرا یہی مقصد ہوتا رانی تو تم سے سودا کر کے اور رقم وصول کرنے کے بعد بھی فرار ہو سکتی تھی، میں نے دلیل دی، اور تم بھی جانتی ہو معاملہ کے سودا ہونے اور رقم لینے کے بعد ایسا ممکن نہیں۔ وہ کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ تم اگر میری ہی زبان سے سننا چاہتی ہو تو سنو۔ معاملہ کے جرائم کی دنیا کے بھی کچھ اصول ہیں، اور جن سے کوئی بھی جرائم پیشہ شخص انحراف نہیں کرتا، اور نہ میں ایسا کر سکتی ہوں، اور نہ تم کوئی سودا طے کر کے اپنی زبان سے پھر جاؤ۔ اور اب تو تمہیں یقین آ گیا کہ میں جرائم کی دنیا کے اصولوں سے پوری طرح واقف ہوں، تو تم مجھے سوچنے کا وقت نہیں دینا چاہتی۔ اس میں سوچنے کی کوئی بات ہے ہی نہیں، اس نے کہا، اور ادھر یا ادھر، دوستی یا دشمنی، اور تمہیں دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ بولو کیا کہتی ہو؟